Hello everyone, this is Shweta Negi and welcome to you my YouTube channel Experience the Maths. And today in this video we are going to discuss about chapter 15 10th class maths from NCERT book probability. So in this video we will discuss about probability, theoretical probability, probability theory, experiment, and there are some basic terms which is related to probability. Okay, first we will discuss about what is the probability is. Okay, so in our ninth class we have already learned about the probability and its formula, and its formula is probability of any event is the total number of favorable events upon total number of events. But before that we will discuss about some theory and some conceptual part of the probability. So first is probability. If you know, in your day to day life you have may encounter such word maybe, probable, 50-50, nearby. Okay, so you have encountered these type of word in your day to day life, means these all are related to chance. Chance means will any event or any process will happen or not. Means suppose there is a box and you have kept some different type of flavor in that, candies in that, orange, mango, pineapple, strawberry, butterscotch. So there are 5 different type of flavors. So if you will ask to a person to pick up a candy, so it can be by chance he will get a banana candy or orange candy or mango candy or whatever. So means out of these 5 flavor, it is a by chance he will get a candy of banana, candy of orange, candy of mango flavor. You can take one another example in your day to day life. Means suppose there are 5 friends and they are planning to go, 5 friends, these 5 friends, and they are planning to go movie. Okay, so they are going to plan, and out of these 5 friends everyone has a different opinion. First is saying he must come, sure she will come. Second is saying can't come. Third is saying maybe she come and she is not. Another two saying the plan of their plan will depend on the other 3. So these are by chance. Okay, means they will come or they will not come. So in maths we represent everything with the help of quantity, and we represent a thing numerically. So in probability we represent all these type of events which are uncertain numerically. Means these all event और एनी एक्सपेरिमेंट और एनी कोई भी आपकी अराउंड कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रोबेबिलिटी कहते हैं मैथ्स में. मीन्स प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? टू रिप्रेजेंट एनी चांस, एनी इवेंट मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली एंड क्वान्टिफाई. मीन्स किसी भी इवेंट को क्वान्टिफाई करना, उसकी अमाउंट को बताना. जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें हेड एंड टेल का, सबसे जो कॉमन एग्जांपल है जो आप अपने पास पढ़ते हैं कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो वो हेड हो सकता है और टेल हो सकता है. ठीक है, उसके 2 साइड पे. तो अब हम जब उसको टॉस करेंगे तो इट में भी हेड और इट में भी टेल. तो इसको जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आपको फॉर्मूला पता है कि अगर हम हेड के लिए निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे भाई 1, क्योंकि इसमें एक कॉइन हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. हेड कितने में है? 1 में ही है. और टोटल आउटपुट कितने हैं? 2.
तो अगर मैं निकालूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो ये हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की भी यही हो जाएगी, क्योंकि हम दो हैं, हेड है और टेल है, दोनों क्वाइट की साइड पे इधर हेड आएगा और टेल आएगा, तो 0.5 0.5। तो इसका मतलब इनकी जो परसेंटेज है वो 50-50 है। क्या है? 50-50। तो ये चांस की बात है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो अपने जो डे टू डे लाइफ की हमारी जो चांस होता है, नियर बाय, प्रोबेबल, मे बी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी डे टू डे लाइफ में, जनरल लैंग्वेज में हम इसे यूज़ करते हैं, और मैथ्स में हम इसको क्या कह देते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी भी इवेंट को होने का जो चांस है, किसी भी जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो गया, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, इसको मैं बाद में भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बताऊंगी, लेकिन अभी हम बेसिकली हमारा फोकस है कंसेप्ट पे। दूसरा आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है कि मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें कि हम इन इवेंट्स को पढ़ते हैं, इन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। जो भी कोई हमारे पास इवेंट है जो अनसर्टेन है, उसको जब हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो मैथमेटिकल की जो वो ब्रांच है उसको हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। जैसे कोई सी भी थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो थ्योरी होती है, अब प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी हो गई। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक इन विच वी एक्सप्रेस एनी अनसर्टेन इवेंट न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली और क्वांटिफाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसके बाद आता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जनरली आप हम साइंस में पढ़ते हैं कि भाई किसी चीज़ में कुछ मिलाया तो हमें कुछ भी प्रोडक्ट हमारा मिल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो H2O बन गया। तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम जब कोई भी टास्क या कोई भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे को एक आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई ये आउटपुट हमारा निकलेगा, है ना। तो हम किस तरीके से बोल देते हैं एक्सपेरिमेंट को? एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? एक हमारे पास प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेस, जिसमें कि कुछ आउटकम्स होते हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, जब हम भाई किसी में कोई भी टू केमिकल्स मिला रहे होते हैं या फिजिक्स का हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें जैसे मिरर का हम रिफ्लेक्शन का हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें मालूम है भाई जो हमारी रे ऑफ इंक्लाइंड है वो क्या हो जाए? रे ऑफ रिफ्लेक्शन और जो परपेंडिकुलर दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा, है ना। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट सेट होते हैं। तो दीज कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि वेल डिफाइन होते हैं जिसके आउटपुट, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट, इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको क्लियर करके आपको लिख करके बता दूंगी एक साथ। पहले मैं वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपके? ठीक है, वेल डिफाइन कोई भी प्रोसेस है जिसके कि आउटपुट क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि भाई जिसमें कि हमें कंफर्म होता है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसका आउटपुट ये होगा। अब देखो, हमने वेल डिफाइंड आउटपुट पढ़ा है, दोनों में हमें आउटपुट पता होता है, लेकिन जब हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें सर्टेन होते हैं कि भाई ये हमारा आउटपुट निकलने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये हो गए हमारे डिटर्मिनिस्ट जो कि फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट भी वही है कि एक प्रोसेस है जिनमें कि वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं, वेल डिफाइंड आउटपुट्स होते हैं, बट द सीक्वेंस और द ऑर्डर ऑफ द आउटपुट कैन नॉट बी डिफाइंड। अच्छा, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से जैसे कैसे समझाती हूँ, समझिए। हम पढ़ रहे हैं रैंडम, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताती हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा कि वेल डिफाइंड आउटकम्स, ठीक है, वेल डिफाइंड आउटकम दोनों में हमारे पास आउटकम्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में भी और आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बट वी नो द आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट में वी नो द
क्या डिफरेंस है ये ध्यान रखना बेटा। आउटकम्स, वी नो दी आउटकम्स की क्या आने वाला है, बट वी डोंट नो सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ आउटकम्स। हमें मालूम है, देखो बच्चे, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, क्या किया, टॉस किया, तो एक कॉइन, वन कॉइन को टॉस करें, हमें मालूम है हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा? हम नहीं बताते। तो इसी को तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि भाई कितने चांसेस है हेड आने के, कितने चांसेस है टेल आने के, ठीक है। तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। और जो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया ये होता है कि हेड आ सकता है, टेल आ, लेकिन हमें नहीं मालूम कि पहले कौन आएगा। हो सकता है आपने टॉस किया कॉइन, हमें मालूम है हेड आएगा या टेल आएगा, बट मे बी आपने 2 टाइम्स किया, दोनों टाइम हेड आ गया, मे बी दोनों टाइम टेल आ गया, मे बी एक बारी हेड आ गया, एक बारी टेल आ गया। मीन्स ऑर्डर ऑफ आउटकम वी कैन नॉट डिफाइन। जैसे आप रोल करो डाइस को, ठीक है, डाइस को आपने रोल किया 1 2 3 4 5 6, आपके ये डिफाइन आउटकम्स है, ये ही आएंगे 1 2 6, 7 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि 7 तो है ही नहीं। तो आपको आउटकम्स पता है, लेकिन आपने 1 पहली बार किया 2 आ गया, दूसरी बार किया फिर 2 आ गया, तीसरी बार आपने किया फिर 4 आ गया। तो आपको मालूम है 1 to 6 कोई ही नंबर आएगा, बट कौन सा नंबर कब आएगा आपको ये नहीं पता। तो इन्हीं को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि वी हैव डन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही प्रोबेबिलिटी में किए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे आप डेक ऑफ कार्ड में से कोई एक कार्ड बाहर निकालते हैं, तो आपको मालूम है 52 का पूरा कार्ड होता है, 13 होता है, टोटल नंबर 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं ना। एस होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है, ठीक है। आपके पास डायमंड और हार्ट होते हैं रेड कलर के, स्पेड और एस होता है आपके पास ब्लैक कलर का, है ना। तो आपने पूरे 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को स्वाइप आउट करना है, तो आप क्या उसको बता सकते हैं कि कौन सा कार्ड आएगा? आपको मालूम है कि इन 52 कार्ड्स में से ही एक कार्ड आएगा, बट यू कैन नॉट डिफाइन इट्स ऑर्डर। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बच्चे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये हम प्रोबेबिलिटी में यही होते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलिए अब नेक्स्ट, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि क्या है हमारे पास, सैम्पल स्पेस। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो जो हमारे आउटकम्स होते हैं उनको हम कहते हैं इवेंट, इवेंट्स एंड सिंपल स्पेस, नहीं सैम्पल स्पेस, सॉरी नॉट सिंपल, सैम्पल, सैम्पल स्पेस, ठीक है, सैम्पल स्पेस, और वहीं से बनती है हमारी इवेंट। अब चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। एक पेज ले लेती हूँ मैं। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हम कह रहे हैं आउटकम्स, आउटकम्स मीन्स बेटा जो हमारा रिजल्ट होता है, बेसिकली जो हमारा निकल के आ रहा है उसका आउटकम। इन आउटकम्स को ही इवेंट बोलते हैं, और इन इवेंट को पहले हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, और वहाँ से हमारी बनती है इवेंट्स। अब देखो सैम्पल स्पेस हमारी क्या होती हैं, सारा सेट ऑफ आउटपुट्स, व्हेन वी आर पुटिंग ऑल द आउटपुट टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ सेट, दैट इज सैम्पल स्पेस। कि जितने भी मेरे पास आउटपुट है, सपोज देखो बच्चे, मैंने क्वाइन को टॉस किया, एग्जाम्पल से समझिए आप इसे, क्वाइन को टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो मैंने इसका एक सेट बना दिया। तो ये मेरा एक वन क्वाइन को टॉस करने के बाद जो मेरे आउटपुट है उनको सेट की फॉर्म में जब मैंने रख दिया, ये करली ब्रेसेस रखते हैं तो सेट बन जाता है। तो ये सैम्पल स्पेस हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 क्वाइन को टॉस कर रही हूँ, 2 क्वाइन को टॉस कर रही हूँ, तो उसकी जो मेरी सैम्पल स्पेस बनेगा उसको मैंने कर दिया। हेड आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं, एक में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, पहले में टेल आएगा, दूसरे में, तो 4 आउटपुट्स हो गए। इनको मैंने क्या कर दिया, साथ में रख लिया, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस हो गया। ऐसे ही 1 डाइस को मैंने टॉस किया, रोल किया, तो
1 2 3 4 5 6, ये जितने भी पॉसिबल मेरे आउटकम्स हो सकते हैं उनको मैंने एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ. दैट इज़ मेरा सैम्पल स्पेस. ठीक है, अब आ जाते हैं इवेंट. सैम्पल स्पेस से ही इवेंट बनती है हमारी. इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. अब देखो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि सबसेट वगैरह क्या है. सेट होता है कि जितने भी हम उनको साथ में रख देते हैं बच्चे. ठीक है, सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटपुट्स हैं उनको हमने साथ में कलेक्ट करके रख दिया. कलेक्शन ऑफ ऑल दी आउटपुट्स. आप इसको ऐसे बोल दीजिए, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स या कलेक्शन ऑफ, क्योंकि कलेक्शन ही होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स. तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया. अब वहाँ से हम आ जाते हैं इवेंट. इवेंट हमारी क्या होती है? स्पेसिफिक आउटपुट होती है. क्या होती है? स्पेसिफिक आउटपुट. अब जैसे ये मेरे पास 1 to 6 है, सैम्पल स्पेस है. अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि मल्टीपल ऑफ टू में मैंने देखा कि सैम्पल स्पेस में मेरे पास क्या क्या आ गई. इवेंट का सेट क्या क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 6 बन जाएगा. दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2. तो ये मेरी इवेंट हो गई. ये क्या है? हमारे इवेंट है. तो ये भी आउटपुट ही, लेकिन ये स्पेसिफिक आउटपुट हो गए हमारे, जो मैं अपने लिए ढूंढना चाह रही हूँ. मतलब जो मुझे चाहिए. ठीक है, डिज़ायर बोल लो या स्पेसिफिक बोल लो. ठीक है, अच्छा, जैसे अब मैंने कह दिया, इस हेड एंड टेल में ले लेते हैं, ये इस वाले में, इसके एग्जांपल में ले लो. यहाँ पे क्या इवेंट बन सकती है हमारी? मैंने कहा कि मुझे वो इवेंट्स चाहिए जिसमें कि एक ही टाइप का हो, हेड हो, या जिसके जो मतलब फेस पे एक सिमिलर टाइप की चीज़ें हों. हेड हो, टेल हो. तो वो कौन हो गई मेरी? हेड हो सकती है और टेल हो सकती है. ये वाला मेरा एक सेट बन गया. या मैं कहूँ कि ऐसा चाहिए हमें कि ऐसी वो इवेंट्स हमें चाहिए जिसमें कि अपोजिट फेज हो, हेड हो या टेल हो, या टेल हो या हेड हो. तो ये 2 बन गई. या इसमें ही ले लो, मुझे ऐसी इवेंट्स चाहिए इसमें, डाइज में प्राइम नंबर चाहिए सारे. तो 2 3 5 सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. किसमें? आउटपुट ऑफ डाइज में, थ्रोइंग अ डाइज. तो सैम्पल स्पेस और इवेंट दोनों ही एक्सपेरिमेंट के आउटपुट्स होते हैं. कौन से एक्सपेरिमेंट के? रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट्स होते हैं. सैम्पल स्पेस में हमारे सारे आउटपुट्स होते हैं, ऑल द आउटपुट. और इवेंट्स में हमारे कुछ स्पेसिफिक आउटपुट्स होते हैं जिनको कि हम ढूंढ रहे होते हैं. तो क्लियर? सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स. नाउ इट इज़ क्लियर? ओके, लेट्स मूव. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? इज ट्रायल एंड सैम्पल स्पेस साथ में बता दिया. आप ट्रायल में बता देती हूँ आपको, है ना, कि व्हाट आर दी ट्रायल्स. चलिए, ट्रायल मीन्स, देखो, ट्रायल एक, अगर आप रैंडम में देखें तो आपने ये टर्म सुना होगा, ट्रायल मैच, ट्राई बॉल. ट्रायल मीन्स किसी भी प्रोसीजर को स्टार्ट करना मतलब परफॉर्म करना. तो ट्रायल वही होता है. प्रोबेबिलिटी में ट्रायल भी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कि परफॉर्मिंग एन रैंडम एक्सपेरिमेंट. परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज अवर ट्रायल. बस, जैसे twice a coin, throwing a dice, taking a card from the deck of 52 cards, picking up a ball from marble ball from a box, a jar, taking a candy from a bag. So these are performing a random experiment. तो उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रायल कह देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स को पहले समझ लीजिए, फिर आपको ये इसकी डेफिनेशन और भी समझ में आ जाएगी. ठीक है, देखो, अगर आपको मैं एक केस ऐसे समझाती हूँ कि मेरे पास एक कॉइन है. ठीक है, एक पे उसकी साइड पे हेड लिखा है और दूसरे साइड पे उसका टेल लिखा है. लेकिन क्या है कि जिस साइड पे टेल लिखा है ना, वो थोड़ा सा कोनिकल शेप में है, ऐसे थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा हुआ है. ठीक है, और जब मैं उसको टॉस किया तो हमें मालूम है इस केस में
टेल आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो हो सकता है जब हम वो मतलब कॉइन को टॉस करके वो फ्लोर पे गिरे तो वो इस तरफ से ना गिर के हमेशा हमारे हेड ही को आए। तो इस केस में हमारी लाइकली इवेंट्स नहीं है। मतलब कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे पास अनबायस कंडीशन होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हमने इस तरीके से डाइस को हम ऐसे फेंक रहे हैं कि इधर से ऐसे टूटा हुआ है कि 1 कभी उसका आए नहीं, इस तरीके से उसका नो। तो हमेशा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वो क्या होता है, अनबायस होता है, ठीक है। या फिर आपने एक बैग में कैंडी रखी हुई है और आपको बोला है कि भाई उस बैग में से कैंडी निकालनी है, तो आपको मालूम है जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो आपको जो कैंडी का शेप है एकदम एग्जैक्टली सेम रखना है। आपने अगर एक कोई छोटी सी कैंडी का सारी सेम रखी है और जो एप्पल वाली कैंडी है या आपको जो पसंद है ऑरेंज वाली कैंडी, उसका शेप थोड़ा सा बड़ा रख दिया और यूँ 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 हाथ फिराया, देखा कि बड़ी कैंडी ये ऑरेंज है। नो, दिस इज़ बायस। आपको जो भी परफॉर्म करना होता है अनबायस करना होता है, ताकि वो क्यों करना होता है कि सारी जो इवेंट्स होंगी उनके होने के चांसेस टू हैपनिंग एंड इवेंट के जो होने के जो चांसेस हों वो इक्वली हो जाए। अब ये कंडीशन तो थी मेरी अनबायस। अब मैं एक कॉइन ले लूँ, हेड हो गया, इधर टेल हो गया, ठीक है। तो हमें मालूम है जब मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँगी तो दोनों चांसेस मेरे इक्वली होंगे, हेड भी वैसे ही आएगा, टेल भी मेरा वैसे ही आएगा। तो इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, कि जब आउटपुट के आने की जो कंडीशन होती है वो सब के लिए यूनिफॉर्म होती है, आइडेंटिकल होती है। ऐसे नहीं है कि इसके लिए ज़्यादा होगी इसके लिए कम होगी। हेड और टेल टॉस को जब मैं कॉइन को टॉस करूँगी तो हेड भी वैसे ही आ सकता है, उतनी बार आ सकता है जितनी टेल आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 थ्रोइंग अ डाइस, तो उतनी बार आ सकता है भाई। 1 के आने के भी उतने ही चांसेस जितने 6 आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब जैसे कार्ड वाला है ना, कार्ड है, कार्ड में मैंने क्या किया कि जो मेरा इक्का है ना, मतलब ए होता है, जो अल्फ़ाबेट ए होता है उसको मैंने क्या किया, जैसे कहते हैं ना हुकुम का इक्का सबसे पावरफुल होता है, हुकुम का इक्के को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया कार्ड को, और अब बोला कि भाई टेक आउट ऑफ एनी कार्ड। तो हमें मालूम है कि वो थोड़ा सा जो है, अब मुझे वही निकालना है हुकुम का इक्का, तो मुझे मालूम है थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, मैं उसको देख के निकाल लूँगी। तो ये तो क्या हो गया, चीटिंग तो खैर ये हो गई, लेकिन ये बायस नहीं होंगी। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जो कंडीशन है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आप जब 1 के लिए थ्रो करना चाह रहे हैं तब भी वैसे ही आपका डाइस होना चाहिए, 2 के लिए तब भी वही जो कि आपके लिए 6 के लिए होना चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड, जब आइडेंटिकल कंडीशन में हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनके आने के चांसेस सारे इवेंट्स के आने के चांसेस इक्वल हों, बिल्कुल एक जैसे हों, तो उन इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब समझे इसका, ये इक्वली लाइकली इवेंट। अब इसके आपको मीनिंग भी समझ में आ रही होगी। इक्वली मीन्स एक जैसी, लाइकली एक तरह से इवेंट, कि कोई भी इवेंट सब एक तरह के से आए, कोई भी बायस ना हो उसमें। तो दिस इज द इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स आपको पता है क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स, वही जो कि आपको चाहिए। सपोज़ आपको हेड का निकालना है, तो आपने कहा कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है, तो वो आपकी फेवरेबल हो गई। जिस इवेंट को आप डिज़ायर कर रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी थी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, एक्सपेरिमेंटल एंड एम्पेरिकल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इस तरह से देखते हैं कि अभी तक जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे हमने कहा कि भाई 50 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, वी टॉस अ कॉइन 50 टाइम। हमने देखा कि 24 टाइम हमारा हेड आया और 26 टाइम हमारा टेल आया, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हेड की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, 24/50, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 26/50, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, एक्सपेरिमेंट, जबकि हम कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपना रिकॉर्ड निकालते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम, जैसे कि भाई डाइस को हमने फेंका, एक बार एक डाइस को फेंका तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6, 2 की 1/6। तो ये क्या है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जबकि हम एक्चुअल कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 10th में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, जो इसके पीछे जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई इवेंट किस तरीके से हो सकती है, हम क्या करते हैं उसका रेशो निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब उसके लिए हम एक्चुअल नहीं करेंगे कोई भी एक्सपेरिमेंट। उसके लिए जो हमारे पास जो फेवरेबल जो भी आउटकम हमें चाहिए और कितने टोटल आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं, हम उसका मतलब एक फॉर्मूला बना लेते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में जनरली हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। इसमें हम एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं परफॉर्म करेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल में हम उसके लिए क्या करते हैं, एक जर्नलाइज फॉर्म करते हैं। अब देखो इसका जर्नलाइज फॉर्म देखो, ये देखो ये हमारे पास थ्योरेटिकल है, सॉरी ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंट। अब इसके साथ देखो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे चलेगी। देखो एक्सपेरिमेंटल में हमने एक्सपेरिमेंट के निकाल दिया, अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसी डिफरेंस होती है कि एक कॉइन को टॉस किया या टॉस करने पर कभी भी करो, हेड और टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। तो हमें मालूम है भाई कि इसमें टोटल जो फेज होते हैं, टोटल आउटपुट हो सकते हैं 2, और हेड एक तरीके से आ सकता है, टेल भी एक तरीके से आ सकता है, तो 0.5। तो ये हमारा एक रूल बन गया। इसके लिए हमें एक्चुअल के प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आए समझ में? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं टेल के लिए निकालूं तो 1/2। तो ये मेरा एक टाइप से क्या बन चुका है, ये एक थ्योरी बन गई मेरी कि भाई किसी भी कंडीशन में आप किसी कॉइन को टॉस करोगे तो हमेशा प्रोबेबिलिटी यही आएगी। लेकिन इस वाले केस में आपके आउटपुट चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखो इसी केस में अगर मैंने 50 टाइम एक कॉइन को टॉस किया, ये आउटपुट है। नेक्स्ट 50 टाइम्स में करा मैंने और मेरे पास अब हेड आ गए 30 और मेरे पास टेल आया आपकी बारी 20। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जो आउटपुट्स होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। थ्योरेटिकल में देखो, थ्योरी मीन्स क्या होता है किसी भी चीज़ का, जो कि फिक्स्ड होती है, जो कि एक रूल होती है हमारी। तो अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम वही पढ़ते हैं कि भाई किसी चीज़ को जर्नलाइज कैसे किया जाए। अब जैसे कि 1 to 6 हमारे पास डाइज होते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई कहीं पे भी एक कॉइन को हमने एक डाइस को हमने थ्रो किया, तो बताओ कि 1 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम कहेंगे भाई 1, टोटल आउटपुट 6 होते हैं और 1 एक ही टाइप से होता है तो 1 आ गया। अब इसी में देखो, इसी क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई एक डाइस अगर हम फेंकें तो बताओ कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। हमें मालूम है कि 2, 3 and 5 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, 3 टोटल आउटपुट हमेशा 6 है। तो ये जर्नलाइज मतलब ये थ्योरी, इसके लिए हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग? ठीक है। और देखो ये डाइस का एग्जांपल मैं आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से कैसे समझा सकती हूँ कि भाई एक डाइस को हमने थ्रो किया, 1 आया 2 बारी, 2 आया 4 बारी, 3 आया फिर अगेन 2 बारी, 4 आया 3 बारी, 5 आया हमारा 6 टाइम और 6 आया हमारा किसी भी टाइम नहीं। तो कितनी बार हमने डिवाइस किया होगा, ये तो हमारे डाइज हमने फेंका है और ये टाइम्स है, कौन कितनी टाइम्स आया। तो ये कितना हो गया 2, 4, 6, 6 and 2 8, 8 and 3 11, 11 और ये कितने हो गए हमारे पास 11 and 6 17। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इस डाइस को 17 टाइम्स थ्रो किया, 17 टाइम, और ये डिफरेंट आउटपुट है। अब हम बोलें कि भाई इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने बोल देंगे कि 4/17। दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी।
एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया, फिर रिकॉर्ड को नोट किया, फिर अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की 2 के लिए। एंड दिस इज़ नॉट अवर दिस इज़ थियोरेटिकल। थियोरेटिकल में हमें पता होना चाहिए कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और हम उस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? सो if you find this video useful for you and if you have understand this video, so do not forget it like. Thank you children.